to removal of the nitrogenous waste products from the patient's body. Definition wise, the process of the removing nitrogenous waste products and excessive water or fluid from the body. Dialysis is necessary when the kidneys are not able to adequately filter the blood. Initially, when patients come to the ER or OPD setup with the symptoms of the uremia or some CKD symptoms, we uh, differentiate the patient from the ARF or the CRF, then decide for the dialysis. Dialysis is a mechanical procedure. Then filter the patient blood from through dialysis machine to remove the nitrogenous waste product. Dialysis allows the patients with the renal failure and chance to live productive lives. When a patient in a uremic condition or the CRF condition is in no more to do any work or a normal life. Indication of the dialysis. Indication of the dialysis is different in the ARF and CRF. There are two different differentiation. ARF is acute renal failure and CRF is the chronic renal failure. Sometimes ARF not require hemodialysis or the peritoneal dialysis, but CRF is usually required in hemodialysis or the renal transplants. Indication of dialysis in acute renal failure is a severe fluid overload, patient in the fluid overload condition and having the pleural effusion and the pulmonary edema and refractory hypertension, uncontrollable hyperkalemia. Hyperkalemia is a lethal condition and causes the heart failure or atrial fibrillation. Nausea, vomiting, poor appetite, gastritis with hemorrhage, lethargy, malaise, and stupor, coma, and delirium. These are uremic symptoms: nausea, vomiting, poor appetite, gastritis in uremia. Pericarditis, a risk of the hemorrhage or the temperament, bleeding diastasis, epistaxis, and the gastrointestinal bleeding, severe metabolic acidosis. When a patients come to the ER or the OPD having the severe shallow breathing in the rule out the severe metabolic acidosis is also indication of the hemodialysis. Blood urea nitrogen, burn is more than 7 to 70 or in between 70 to 100 milligram per deciliter is a indication of hemodialysis in ARF patient. अच्छा, हम जब भी बात करते हैं डायलिसिस की, डायलिसिस इज अ टू डिफरेंट वे ऑफ डायलिसिस. वन वे इज अ पेरिटोनियल डायलिसिस, अदर वे इज अ हेमोडायलिसिस. ठीक है, starting with indication of ARF, you know that ARF is a time being condition and CRF is a time lasting condition. CRF indication is a pericarditis, is a life-threatening condition, fluid overload or the pulmonary edema, refractory to diuresis, accelerated hypertension, poorly responsive to the antihypertensives, progressive uremic encephalopathy or the neuropathy such as confusion, asphyxia, myoclonus, wrist or the foot drop, seizures, bleeding diastasis attribute to uremia. Types of the dialysis, the two types of the dialysis. Peritoneal dialysis, nowadays peritoneal dialysis is an old-fashioned dialysis and hemodialysis. Peritoneal dialysis is usually the long time taking and patient should hospitalize first, then peritoneal dialysis is done. Hemodialysis is a daycare procedure and can be done in a home services, can be done in a roadside, can be done in a dialysis units. Each type of the dialysis has advantages and disadvantages. This is a picture of hemodialysis and the peritoneal dialysis patients. Peritoneal dialysis patients, dialysis fluids inserted into the peritoneal cavity or the catheter inserted into the peritoneum or the abdominal cavity by the surgeon, by the nephrologist or by the urologist. And other picture in my left side, he's a hemodialysis patient attached with the hemodialysis machine through the AV fistula and atriovenous fistula.
Peritoneal dialysis involves surgery to implant a peritoneal dialysis catheter into your or the patient abdomen. The catheter helps filter your blood through the peritoneum, a membrane in the abdomen. Peritoneal membrane is in abdomen. During the treatment, a special fluid called dialysis flow into the peritoneum. The dialysis absorbs the waste. Once the dialysis draw waste out the blood stream या blood circulation, it's a drain from the abdomen. अच्छा, हमें समझने वाली बात ये है कि basically is a normal physiological phenomena. Every higher concentration solutes concentrate into the lower concentration solutions. अब जब हमारे पास पेशेंट आता है फॉर द पेरिटोनियल डायलिसिस, we introduce the fluid, lower concentrated fluids into the peritoneal cavity. तो उसमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होता है थ्रू पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. अब हुआ ये कि हमने जब पेशेंट्स को लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया उसकी बॉडी के अंदर, तो उसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में या इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट में जब हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स पड़े होते हैं तो वो टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की तरफ आते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकली. और फिर वो जब उसके अंदर गैदर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो हम जो है फिर उसको ड्रेन आउट करके वापस से एक और न्यू बैग अटैच करते हैं जिसके अंदर अगेन वही सेम फ्लूइड्स मौजूद होते हैं जो लोअर कंसंट्रेशन होते हैं. बॉडी के अंदर हायर कंसंट्रेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स पड़े हैं जिसमें पेशेंट हैविंग द हाइपरकैलेमिक कंडीशन, हाइपरमैग्नीसियम कंडीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पड़े हैं जिसके अंदर नंबर 1 जो है इज यूरिया इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, क्रिएटिनिन इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. ये सब हायर कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं. जब हायर कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं तो हम जो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज ट्रांसफ्यूजन के जरिए वो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स जो है लोअर कंसंट्रेशन के अंदर आके एब्सॉर्ब हो जाते हैं. उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को जो हमने आर्टिफिशियली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया होता है उसे ड्रेन आउट कर देते हैं. This process will take a few hours and need to be repeated 4 or 6 times per day. However, the exchange of fluids can be performed while through sleeping or awake. There are numerous different types of the peritoneal dialysis. The main one are types of the peritoneal dialysis: continuous ambulatory peritoneal dialysis. कहते हैं your abdomen is filled with the drain multiple times each day. This is a method doesn't require a machine and must be performed while awake. अच्छा, जो पहला हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस का वे है जिसको हम कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को 45 डिग्री एंगल पे हम लोग बिठाते हैं और 2 कैथीटर अटैच होते हैं उसके एब्डोमेन के अंदर. पहले कैथीटर से हम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स जो है और सॉल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर. दूसरा कैथीटर जो होता है उसमें खाली बैग लगा हुआ होता है, एक वहां से वो ड्रेनेज हो रही होती है. बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, टाइम टेकिंग होता है, 24 to 72 आवर्स के लिए होता है. 4 से 6 दफा उस सॉल्यूशन को चेंज करना पड़ता है जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है. मल्टी टाइम जब सॉल्यूशंस चेंज हो रहे होते हैं तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, तो पेशेंट हैविंग द पेरिटोनाइटिस. दूसरी चीज ये होता है कि पेशेंट बाउंडेड होता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डेफिकेशन हो, फूड हो या यूरिनेशन हो उसे बेड पे ही करनी पड़ती है. इन द फर्स्ट टाइप ऑफ द peritoneal dialysis, a continuous ambulatory peritoneal dialysis. Multi-time exchange of the fluids होते हैं. Patient is having the weakness and sometimes patient having the hypoglycemia or sometimes patient having the sore bad sores. Second type is a continuously cycling peritoneal dialysis. CCPD uses the machine to cycle the fluids into out and your abdomen. Is usually done at the night while patient is sleeping. इसमें एक मशीन अटैच होती है जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं. उसके 2 वे होते हैं. एक तो हम नॉर्मल इसके एक्सचेंज होने का वेट करें
हम ये इंतज़ार करें उसको कि पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी उसको एक्सचेंज करेगी और ड्रेनेज में खुद ही आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया, उसमें हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट का जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है, पेशेंट का जो पेरिटोनियल कैविटी होता है, वही डिफ्यूज एक्सचेंज के ज़रिए, डिफ्यूज ट्रांसमिशन के ज़रिए जो है वो हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूट्स को जो है वो लोअर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर मिक्सअप कर रहा होता है, गैदर कर रहा होता है, फिर वो बॉडी के दूसरे एंड से जो हमने दूसरा एक कैथेटर लगाया होता है वहां से ड्रेन हो रहा होता है। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसके अंदर बेसिकली एक मशीन यूज होती है जो एक साइक्लिंग का काम करती है। फर्स्टली इंट्रोड्यूस करती है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स को इन द पेरिटोनियल कैविटी, फिर वहां से ड्रेनेज कराने के लिए भी एक रैपिड प्रोसीजर के तौर पर मशीन यूज की जाती है। थर्ड इज intermediate peritoneal dialysis, IPD this treatment is usually performed in the hospitals, क्योंकि इसके अंदर भी सॉल्यूशंस जो है मल्टी टाइम्स यूज होते हैं, मशीन की जरूरत होती है। तो इसमें perform the home is use the same machine CCPD, but is a process takes longer. Nowadays, why peritoneal dialysis is the old-fashioned dialysis? Because he is a time taking. Other is some contraindications of the peritoneal dialysis. Number one contraindication is a major abdominal surgery. Patient having the bleeding diastasis, and third condition is patient is on ventilator but having the brain death. There are three conditions the peritoneal dialysis are contraindicated. Other is a suitable option the hemodialysis. Hemodialysis is the most common type of the dialysis nowadays. This process uses artificial kidney they call hemodialyzer. Hemodialyzer is a artificial kidney, is a multi times more effective than peritoneal dialysis, and the extra fluid from the blood. Same procedure is a different types. Peritoneal dialysis, I also dialyze the patient and remove the waste products and excessive fluid. Hemodialysis also remove the waste product and an excessive fluid, but hemodialysis through a machine and short time of period is taken, and peritoneal dialysis from the peritoneal cavity. The blood is removed from the body and filtered through an artificial kidney. The filtered blood is turned and returned to the body with the help of dialysis machine. Dialysis machine like a regulatory machine. आप जब आप भी डायलिसिस की तरफ जाते हैं, हीमोडायलिसिस के लिए पेशेंट को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसको आप यही बताते हैं कि आपकी गुर्दों की सफाई हो रही है। बेसिकली गुर्दों की सफाई नहीं हो रही होती, इस पेशेंट के ब्लड की सफाई हो रही थी। इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्टरिंग बाय द मशीन। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं जो पेशेंट को सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। If a patient in a uremic condition, तो uremic gastritis is the first condition. Patient developing nausea, vomiting, anorexia, loss of appetite. Then goes urea into the mainstream. Patient having the uremic encephalopathy grade 1, grade 2, grade 3, and grade 4. Uremia goes into the cardiac side and the heart side to then cause the pericarditis, myocarditis. When urea goes into the lung side, causes the pleural effusion, pulmonary edema, and etc. Three types of the procedure we done before hemodialysis. Number one is a central venous catheter. Number two is AV fistula. Number three, AV graft. What is the venous catheter and what is the AV fistula and what is a graft? The three different things. Catheter for the temporary basis, we use a CVP line, central venous pressure line, to introduce the main venous central venous of the body is a subclavian vein or the interjugular vein of the femoral vein to maintain the high blood flow towards the machine and the patient. Minimum 150 ml per minute is a minimum requirement of the machine is a blood flow, and maximum is a 500 to 700. High flow oxygen maintaining on the 700 ml per minute. Hemodialysis start is a 2 hour session, and initially first dialysis session is a 2 hours, then
and second dialysis session is a 3 hours, and then maintaining the 4 hours of the dialysis. As a multi-times patient or the patient who is a diagnosed case of the CKD, we need multiple dialysis session. So after that, and first and second session, we dialyze the patient 4 hours regularly on the twice a week or the thrice a week. अच्छा, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, बेसिकली जब डायलिसिस की उसे नीड होती है, तो थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड. पेशेंट HP is more than 10, क्योंकि जब भी पेशेंट को आप डायलाइज करते हैं तो उसका 150 ml से लेके 400-300 मिनिमम ब्लड जो है वो बॉडी से निकल के मशीन की सर्कुलेशन में आता है. तो उसमें सबसे खतरनाक एक चीज जो देखने में आई है ड्यूरिंग डायलिसिस, इंटर डायलिटिक हाइपोटेंशन होता है, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट के अंदर वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूमिक शॉक में चला गया, पेशेंट को सर्कुलेटरी शॉक हो गया, पेशेंट सडन कार्डिक अरेस्ट में जा सकता है. तो HP हमेशा ऐसे पेशेंट का जिसको आप हीमोडायलिसिस कर रहे हो सफिशिएंट होना चाहिए. दूसरी चीज ये है कि पेशेंट कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे ना हो. अगर पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे है तो इनिशियली आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जिस दिन भी आपका डायलिसिस सेशन है, जिस दिन भी आपको डायलिसिस करवानी है, तो पहले आप अपनी वो दवा नहीं लेंगे, वो जो दवा आप दौरान इलाज आप ले रहे होते हैं जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है. क्योंकि जब भी हम डायलिसिस करते हैं तो पेशेंट का वॉल्यूम कम होता है, पेशेंट से जो एक्सेसिव वॉल्यूम होता है वो निकलता है, पेशेंट का जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में आता है, जिसकी वजह से इंटरडायलिटिक हाइपोटेंशन हो जाता है. तीसरी चीज है, पेशेंट अगर हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से वो CKD के अंदर गया है और उसको डायलिसिस की नीड है और वो डायलिसिस से पहले इंसुलिन लगा के आ रहा है. अच्छा, आर्टिफिशियल किडनी हैज नो सेंस टू रिमूव एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स ना. अल्लाह ताला ने जो गॉड गिफ्टेड किडनी हमारे पास रखी है वो कनेक्टेड है हमारे दूसरे ऑर्गन्स के साथ. तो दे नो कि जो है ग्लूकोज और जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो मैंने बॉडी के अंदर रिटेन करने हैं, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, जिसको ज़रूरत नहीं है बॉडी को, उसे ही बाहर फिल्टर करना है. लेकिन आर्टिफिशियल किडनी जो एक प्लास्टिक की किडनी जो है ह्यूमन मेड है, एक इंसान ने बनाई है, उसे ये तमीज़ नहीं है कि नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स को निकालना है, सिर्फ वो एसेंशियल कंपोनेंट्स को बॉडी के अंदर रिटेन करना है. जब भी पेशेंट डायलिसिस हो रहा होता है तो दोनों उसके अंदर चीजें निकल रही होती है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स दोनों निकल रहे होते हैं. पेशेंट हैविंग ड्यूरिंग डायलिसिस हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, ये तमाम कंडीशंस उसको हो सकती हैं. तो उस कंडीशन में पहले आपने जब भी पेशेंट डायलिसिस के लिए आएगा तो आपने उसको एजुकेट करना होता है कि अगर आप किसी भी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग पे हैं, ओरली ले रहे हैं, ये इंसुलिन की फॉर्म में ले रहे हैं, तो आपने उसको उस दिन के लिए जब कि आपको डायलिसिस के लिए आना अवॉइड करनी है. बिफोर डायलिसिस आपने नहीं लेनी. आफ्टर डायलिसिस आप जो अपना सेकंड डोज होगा, जो इवनिंग का डोज होगा, वो ले सकते हैं. मॉर्निंग का डोज आपको स्किप करना होगा. अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब अगर हम लोग सुबह इंसुलिन नहीं लेते तो दोपहर में हमारी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और आफ्टर डायलिसिस जो है वो हमारी शुगर अनकंट्रोल होती है. तो अब आपने उसको एजुकेट करना होता है कि आफ्टर डायलिसिस आपकी शुगर इसलिए बढ़ी हुई होती है क्योंकि ड्यूरिंग डायलिसिस हम हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए IV इंट्रावेनस 25% ग्लूकोज के एम्पूल्स दे रहे होते हैं फॉर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम. अब दो तरह की कंडीशन पेशेंट डेवलप करता है, हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज अ मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस थ्रू मशीन होती है, उसमें दो तीन तरह की हीमोडायलिसिस हम लोग करते हैं. एक होता है हीमोडायलिसिस विद मेंटेनेंस, एक होता है हीमोडायलिसिस विद क्लियरेंस. अच्छा, मेंटेनेंस किस में की जाती है? जो पेशेंट जो है कंटिन्यूसली डायलिसिस पे है, जो पेशेंट जो है जिसको हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है. और क्लियरेंस डायलिसिस किसको की जाती है? जैसे ARF का पेशेंट है, ARF की वजह से यूरिन आउटपुट बिल्कुल बंद हो गया, ओलिगो यूरिक स्टेज या एनयूरिक स्टेज में था, तो उसमें जाके जनाब पता चला कि उसने पल्मोनरी एडिमा डेवलप कर लिया है और उसको प्लूरल इफ्यूजन हो गई है, ब्रीथिंग इश्यूज आ रहे हैं. तब उस कंडीशन के अंदर हम उसको हीमोडायलिसिस करेंगे विद अल्ट्राफिल्ट्रेशन और आइसोफिल्ट्रेशन. Isofiltration, ultrafiltration is a process when patient dialyze
विदाउट एनी क्लियरेंस। उसमें यूरिया क्रिएटिनिन का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड हम उसकी बॉडी से निकालेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि पेशेंट जो एक हाइपरवॉल्यूमिक स्टेज में है उससे उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आया जाए, उसके अंदर जो एक्सेसिव वाटर है उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आया जाए, पेशेंट कैन ब्रीथ इजीली, पेशेंट लंग्स जो है क्लियर बाय द पल्मोनरी एडिमा थ्रू डायलिसिस। अच्छा, ये कंडीशन कब आती है? जब के पेशेंट डायरेटिक फेलियर की तरफ जाता है। एक पेशेंट है फ्रूसामाइड डायरेटिक्स पे, वो अच्छी यूरिनेशन कर रहा था, 2 से 3 टाइम जो है ना वो उसको मिक्चुरेशन हो रही थी, लेकिन एक टाइम आया कि डायरेटिक्स जो है वो रेजिस्टेंस हो गई, पेशेंट डेवलप पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी प्लूरल रिफ्यूजन, देन वी डायलाइज द पेशेंट इमीडिएटली। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि पेशेंट इन हाइपरकैलेमिक स्टेज, पेशेंट का पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा है, और अगर आप लेवल करते हैं उसको तो मोर देन 7 है। अब मोर देन 7 जब हाइपरकैलेमिया पेशेंट होता है तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम एट्रियल फिब्रिलेशन की आती है, कार्डिक मेमोरी डिस्टेबलाइजेशन की होती है। आपने उसे ट्रीट किया पेशेंट को, लेकिन ट्रीट होने के बाद भी रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया हो रहा है, अगेन एंड अगेन जब भी आप उसका पोटेशियम लेवल करवा रहे हैं तो वो लीथल कंडीशन में आ रहा है, वो जो है टॉक्सिक लेवल तक आ रहा है, तब आप इमीडिएटली पेशेंट को डायलाइज करें। अगर हम कंसाइज इंडिकेशंस की बात करें तो इसमें 5 एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती है हीमोडायलिसिस की, 2 रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन होती है। नंबर 1 कंडीशन इज यूरेमिक एनकेफेलोपैथी। यूरेमिक एनकेफेलोपैथी की वजह से फिर सारे सिम्टम्स आते हैं, यूरेमिक गैस्ट्राइटिस, यूरेमिक मायोकार्डाइटिस, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। नंबर 2 कंडीशन सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Number 3 is a pulmonary edema. Number 4, creatinine more than 6.5 in non-diabetic patient and 6 in diabetic patient. ठीक है ना? Number 5 is a hyperkalemia. ठीक है। रिलेटिव इंडिकेशंस के अंदर ड्रग इंटॉक्सिकेशन और acute hemolytic reaction। एक पेशेंट था, आपने जो है ना उसको एक कोई ड्रग दी जो इंट्रावेनस दी, उसको टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई, इसको एंटीडोट कोई नहीं था, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि इमीडिएटली डायलाइज द पेशेंट, जितने भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं दवा के वो सारे के सारे डायलाइज, और फिल्टर जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा वो डायलिसिस में रुक जाएंगे, वो पेशेंट जो है वो टॉक्सिन फ्री हो जाएगा। इसी तरह से एक्यूट हीमोलाइटिस, बहुत सारे पैथोजेंस उसके अंदर मौजूद थे, ये ब्लड ग्रुपिंग सही नहीं हुई थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, पेशेंट हैविंग बचता है कि पेशेंट को फौरन से हीमोडायलाइज करें, क्योंकि उसके बाद उसकी जो जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। हीमोडायलिसिस नाउअडेज एडवांस एंड मोर एडवांस। पहले हीमोडायलिसिस के लिए लोगों को घरों पे फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब कुछ इस तरह की पोर्टेबल मशीन्स आ गई हैं जो घरों पे भी ट्रांसफर की जा सकती हैं। इनके साथ पोर्टेबल आरओ मशीन होती है। आरओ मशीन इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्लांट मशीन, जिसके थ्रू हम जो है डायलिसिस करते हैं, वो घरों पे शिफ्ट हो जाती है। अब रोड साइड्स पे भी हीमोडायलिसिस पॉसिबल है। जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, हीमोडायलिसिस और ज्यादा इजी होती जा रही है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायलिसिस, ये बोथ ना डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन आर सेम। हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, इन्फेक्शन और लोकल और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन जहाँ पे हम नीडल बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं एवी फिस्टुला के अंदर, या फिर वेनस कैथेटराइजेशन हुई हुई है, पेशेंट को जो है वो डबल ल्यूमेन कैथेटर पास हुआ हुआ है उसकी नेक में या उसकी सबक्लेविन में, उसके फेमोरल में, वहाँ पे लोकल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, पेशेंट सेप्सिस के अंदर जा सकता है, और मोस्टली पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर पेरिटोनाइटिस में चले जाता है, तो कंटेमिनेशन की वजह से तो लोकल और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है। चौथी चीज जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट जो इनिशियली डायलिसिस पे आता है, जिसके फर्स्ट और सेकंड सेशन होता है डायलिसिस का, वो डेवलप करता है डीडीएस। डीडीएस क्या है कि डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम is an uncommon neurological condition that typically affects people who have just started hemodialysis. फर्स्ट सेशन था उसका, आपने बहुत ज्यादा डायलिसिस कर दी, यूरिया एकदम से कट ऑफ किया, जो न्यूरॉन्स यूरिया डिपेंडेंट हो चुके थे, अचानक से जब वो यूरिया से खाली होते हैं तो वो स्वेल अप हो जाते हैं। जब वो स्वेल अप हो जाते हैं तो पेशेंट डेवलपिंग
न्यूरोलॉजिकल फिट्स, उसे फिट्स डेवलप हो जाते हैं। तो जब भी हमें डायलिसिस करना होती है पेशेंट को, जब भी फर्स्ट सेशन ऑफ डायलिसिस होता है हीमोडायलिसिस का, तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे यूरिया निकलता जाता है वैसे वैसे हम उसको डेक्सट्रोज वाटर या डेक्सट्रोज सिलाइन देते जाते हैं, ताकि ग्लूकोज जो है वो यूरिया की जगह ले ले। जो न्यूरॉन्स पहले से यूरिया को अपना एनर्जी सोर्स समझ के यूटिलाइज कर रहे थे, वो खाली होने के बाद स्वेल अप ना हो, पेशेंट फिट्स डेवलप ना करे और पेशेंट को जो है वो कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ द डीडीएस, हम पेशेंट को हीमोडायलिसिस स्टार्ट होते ही 25% के एम्पुल्स देना शुरू कर देते हैं, या 5% डेक्सट्रोसलाइन स्टार्ट कर देते हैं, या 10% डेक्सट्रोसलाइन स्टार्ट कर देते हैं टू प्रिवेंट डायलिसिस डिसिक्विलिब्रियम। अच्छा, डायलिसिस डिसिक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो है मोस्टली फर्स्ट सेशन ऑफ डायलिसिस में होता है। उसके बाद पेशेंट जो है वो डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है, डायलिसिस को टॉलरेट करने लगता है। तो उसके बाद सेकंड और थर्ड डायलिसिस में इसके चांसेस कम होते जाते हैं। Nausea and vomiting is a common complication during the dialysis or interdialytic complication. Headache due to the hypoglycemia, and muscle cramps due to the excessive water excretion by dialysis या removal by the dialysis machine। जबकि हमारी मसल से, हमारे जिस्म से पानी का बहुत ज़्यादा अखराज होता है, उसके साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो पेशेंट क्राई करेगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा मसल क्रैम्प्स की। मसल क्रैम्प्स जब भी होते हैं तो आपने उसी वक्त पेशेंट को थोड़ा बहुत फ्लूइड्स देना होता है। आईवी डायलिसिस के फिल्ट्रेशन को रोकना पड़ता है, डायलिसिस के फ्लो को कम करना पड़ता है टू प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स। कंसाइज करते हैं इस लेक्चर को। डायलिसिस इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल प्रोसीजर बाय द मशीन और बाय द पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ द डायलिसिस। जो लोग जिन्होंने जिस स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है तो मैं इनको थोड़ा सा समराइज कर दूं कि डायलिसिस क्या है। डायलिसिस इज अ मैकेनिकल प्रोसीजर टू रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड, नॉट किडनी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। गुर्दों की सफाई हो रही है। कोई भी आपके जानने वालों में से, कोई आपके रिलेटिव्स में से, आपके नेबर्स में से कहते हैं कि हम डायलिसिस करवाने जाते हैं, वहाँ पे गुर्दों की सफाई होती है, नॉट गुर्दों की सफाई। ठीक है ना, इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स दे causing the symptoms of the patient, uremic symptoms or the other symptoms। ठीक है, तो डायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल process of the removing nitrogenous waste products and the excessive water from the patient's body by two types। ठीक है, कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के फिर मैंने आपको 3 फॉर्म बताए थे। पहला फॉर्म जो था वो कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा कंटिन्यूअसली साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, थर्ड इज इंटरमीडिएट पेरिटोनियल डायलिसिस। तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। और पहली जो कैप्ट है कंटिन्यूअसली एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, उसके अंदर किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायलिसिस फ्लूइड जो है, जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और पेरिटोनियल कैविटी जो है उसकी वो वहाँ पे एक्सचेंज, डिफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन करवाती है, जिससे हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स जो है वो उस लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आके मिक्स हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं, फिर हम वो सॉल्यूशन जो है वो ड्रेन आउट कर देते हैं। दूसरा जो तरीका है कंटिन्यूअस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस का, इसके अंदर जो है यूजुअली जो साइकिल चलती है फ्लूइड्स की वो बाय मशीन चलती है। एक रेगुलेटरी मशीन होती है जो उसको रेगुलेट कर रही होती है, और उसके लिए पेशेंट का सोना इंतहाई ज़रूरी होता है कि लॉन्ग प्रोसेस, होल नाइट प्रोसेस होता है, और पूरी रात के अंदर उसकी वो डायलिसिस चलती रहती है। इंटरमीडिएट पेरिटोनियल डायलिसिस आईपीडी, इंटरमीडिएट पेरिटोनियल डायलिसिस इज अ ट्रीटमेंट इज यूजुअली परफॉर्म इन द हॉस्पिटल, क्योंकि ये भी ना सॉल्यूशंस इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, और इस सॉल्यूशंस को अटैच करने के लिए एक टेक्निकल बंदे का होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके साथ भी एक मशीन अटैच होती है। अदर थिंग इज समराइज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मैंने आपको जिसका कि हॉस्पिटलाइज प्रोसीजर हुआ करता था, अब नाउअडेज इज अ होम फैसिलिटी और द रोड साइड फैसिलिटी। यूरोप कंट्रीज के अंदर हीमोडायलिसिस कैन बी डन इन द रोड साइड्स एंड कैन बी डन इन द होम।
ठीक है। इसके अंदर पोर्टेबल मशीन्स आ गई हैं जिनको आप इजीली मोबाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान बिकॉज इज अ डेवलपिंग कंट्री तो ये फैसिलिटी अभी मौजूद नहीं है। हीमोडायलिसिस स्टिल इन पाकिस्तान इन हॉस्पिटलाइज प्रोसीजर। तो हीमोडायलिसिस के लिए फर्स्टली रिक्वायर होता है पेशेंट को कैथेटराइज करना, इफ फॉर टेम्परेरी बेसिस तो हम उसकी कैथेटराइजेशन करते हैं इन द जुगुलर वेन, इन द सबक्लेवियन वेन और द फीमोरल वेन। दूसरा तरीका होता है एवरी फिस्टुला, फिर वो आप वैस्कुलर सर्जन से एक कनेक्शन बना देते हैं बिटवीन वेन एंड द आर्टरी, तो वहां से एक आपको हाई फ्लो मिलता है, इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ द डायलिसिस कनेक्शन। अच्छा, जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वैस्कुलेचर जो है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है, इलास्टिसिटी नहीं होती, ओल्ड एज है, छोटे बच्चे हैं जिसके अंदर एवी फिस्टुला नहीं बन सकता, तो थर्ड प्रोसीजर जो वैस्कुलर सर्जन बनाता है वो होता है एवी ग्राफ्ट। एक सिंथेटिक ग्राफ्ट होता है वाई शेप का, जिसकी एक साइड जो होती है वो वेन के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक साइड जो होती है वो आर्टरी के अंदर होती है। जो जो लॉन्ग ल्यूमन होता है वो कनेक्शन होता है जहाँ पे हम निडल इंसर्ट करते हैं, तो ये ग्राफ्ट होता है। जिस तरीके से मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समराइज किया कि कॉम्प्लिकेशंस है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोटेंशन क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पेशेंट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, उसके अंदर जो एक्सेसिव वाटर है जिसने उसको हाइपरटेंशन करवाया हुआ है वो हम जब निकालते हैं तो वो नॉर्मोटेंसिव हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा निकलने की ऐसे बाद दफा हाइपोटेंशन भी डेवलप कर जाता है। दूसरी चीज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया की वही है कि जब डायलिसिस होती है तो ब्लड के अंदर से जो ग्लूकोज लेवल है वो भी कम होना शुरू होता है, पेशेंट डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया। उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है ड्यूरिंग डायलिसिस 25% कैंपुल्स पेशेंट्स को एज ए न्यूट्रिशनल थेरेपी देते रहते हैं। नंबर थर्ड इज इन्फेक्शन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एट द साइड ऑफ एवी फिस्टुला और लाइन हो सकता है। इसके अलावा सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के अंदर सेप्सिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। Number fourth complication is the dialysis disequilibrium syndrome. This complication is a patient develops once on the first dialysis session and prevented by the same 25% dextrose water. Other complication, nausea and vomiting, headache also due to related to the hypoglycemia and muscle cramping. Muscle cramp also related to the hypovolemic state, patient losing water by the dialysis and also losing the electrolytes. They cause muscle cramps. थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यही था। अगर आप लोग कभी भी इस पेंडेमिक के बाद यूनिवर्सिटी रीज्वाइन करते हैं तो डायलिसिस मशीन आके देख सकते हैं। आप डायलिसिस वार्ड में पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हैं, किस तरीके से डायलिसिस मशीन पे पेशेंट को अटैच किया जाता है, किस तरीके से पेशेंट को ना वहाँ से जब उसका सेशन कंप्लीट हो जाता है उसको रिमूव किया जाता है, कौन कौन से हम मेजर्स यूज़ करते हैं और कौन कौन सी जो है वो ड्यूरिंग डायलिसिस हम जो है उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं। आप लोगों को कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें, फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डायलिसिस। आवाज कम आ रही है। लोगों को कॉन्सेप्ट में आज तक ये चीज क्लियर नहीं होती कि व्हाट इज सीकेडी और एनसीआरएफ। इज अ टू डिफरेंट थिंग्स। सीकेडी इज अ डिजीज किडनी, is a reversible kidney disease, ठीक है ना, but patient having the CRF is a chronic renal failure, is a irreversible change। तो उसके अंदर पेशेंट को हमेशा आरआरटी की जरूरत होती है। आरआरटी इज अ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बाय मशीन और बाय कैटावेरिक सपोर्ट। मशीन वही आपकी हीमोडायलिसिस मशीन है जिसके जरिए आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। कैटावेरिक मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। दोनों कंडीशंस के अंदर जो है हमें पेशेंट को पहले एग्जामिन करना होता है, पेशेंट हैविंग सीआरएफ और सीकेडी। अगर सीकेडी है तो हम पेशेंट को एक हद तक जो है प्रिवेंट कर सकते हैं डायलिसिस से। इफ अ पेशेंट इन अ सीआरएफ कंडीशन, पेशेंट शुड डायलाइज ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक थ्रू आउट द लाइफ, जब तक कि उसकी हयाती है।